Assalamu alaikum. I am Zainab Usman, a second year MBBS student at Liaquat National Medical College, Karachi. I hope I am audible to all of you. Topic of my presentation today is dopamine, a neurotransmitter associated with many psychological disorders that are deep-rooted in our society. According to a recent study, depression is a common psychological state affecting over 350 million people from all age groups worldwide. Depression has been recognized as a major public health issue and is being treated as such. According to a 2022 survey, about 18% of children aged 7 to 16 suffer from mental health disorders, and about 20 million people, that makes up 17% of Pakistani population, suffer from some form of mental health condition. And ironically, Pakistan has lowest psychiatrist to patient ratio. According to WHO, 400 psychiatrists and 500 psychiatric hospitals exist in the country. So that means that patients who have access to psychiatrists, number one, there are not enough people who validate mental health problems, and number two, even if they want to assess a psychiatrist, the psychiatrists are all already overburdened, and so the patient neglection comes up. According to a patient survey, the magnitude of mental illnesses is like 6% of patients that are reported suffering from depression, 1.5% suffer from schizophrenia, 1% suffer from Alzheimer's. So we will be discussing some of these disorders today in our presentation, and I hope today's presentation adds on to your knowledge and we are able to unlearn and relearn certain taboos and stigmas, and hopefully validate mental health issues just like we do with general health issues. So starting our presentation, the objectives of our presentation would be, we will be talking about structure of dopamine, metabolism, how it is made and degraded, mode of action, pathways and functions involved, receptors, and clinical disorders. So when we talk about dopamine has a benzene ring, as we can see right here. It has two hydroxyl groups attached to it, and nitrate group attached with ethyl chain. And I thought I would not be studying organic chemistry again after I'm done with it in FSC, but yeah, it is still here in medical. So let's talk about synthesis. From where dopamine is made, it is made from tyrosine. What is tyrosine? Now, tyrosine is a non-essential amino acid. That means that it is already made in our body, so it is not essential to be taken in our diet. So tyrosine comes from diet or degradation of other amino acids in our body. Upon it acts tyrosine hydroxylase, which converts it into dopa. So this is a rate limiting step. Then dopa decarboxylase acts on it along with vitamin B6 and makes dopamine. And from dopamine, other hormones are derived as well, which are norepinephrine and epinephrine. We also call them as noradrenaline and adrenaline. This means deficiency of any of this enzyme would result in a clinical disorder. Now let's talk about its degradation. So dopamine is degraded through two pathways. 90% of dopamine is degraded into dopact by action of monoamine oxidase. So the 90% of the dopamine that is converted into dopact, 60% of it is used as it is in our body, and 40% of it is converted into homovenilic acid that is secreted in urine. The rest of 10% is converted into 3-methoxytyramine, and it is also converted again into homovenilic acid that is also secreted in our urine. Let's talk about mode of action. We see here a presynaptic terminal and a postsynaptic terminal.
presynaptic terminal upon stimulus releases dopamine, which passes through synaptic cleft and attaches itself on the dopamine receptors. Now these receptors can either be excitatory or inhibitory. So the action they produced will be as such. Either they will cause excitation of the postsynaptic terminal or they will cause inhibition of the postsynaptic terminal. After it is done exciting or inhibiting the postsynaptic terminal, this dopamine molecule will either be enzymatically degraded in the cleft or will be taken up by a transporter in the presynaptic terminal, where it will be enzymatically degraded and reused. So that was okay, so someone is asking if tyrosine is a protein. No, tyrosine, as I just said, is an amino acid. It is a non-essential amino acid. Non-essential means that it can be made in our body, and it is not essential to take it in our diet. And is it okay if I respond to questions at the end of my presentation? I hope so. Okay, let's move on. So now we will look at receptors. Dopamine receptors we have divided into two families, D1-like receptors and D2-like receptors. So the receptors of dopamine are metabotropic, which means they are G-coupled. So D1-like receptors cause stimulation or excitation. This means that it will increase the amount of adenylate cyclase and CAMP. So these receptors will be present where we need excitation. T2-like receptors are inhibitory, and they decrease the amount of adenylate cyclase, decreasing the amount of CAMP. So what this will do is it will cause inhibition. So D1-like receptors इनमें कौन कौन से होते हैं? इनमें होते हैं हमारे पास D1, D5, और D2 में हमारे पास कौन से होते हैं? D2, D3 and D4. There are certain characteristics associated with these receptors. Overstimulation of T2 receptors has been seen that it has been associated with schizophrenia. And according to recent research, we have also seen that understimulation of T2 receptor also results in schizophrenia. D3 receptors पहले हमें लगता था कि सिर्फ मिड ब्रेन यानी न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस यानी सिर्फ एक पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर होते हैं. But according to recent research, they have been found in several other places in the brain. और D4 receptors इनकी खास बात ये है कि anti-psychotic drugs जो होती है ना, they are highly effective for anti-psychotic drugs, and we keep this in mind when we make medicines in pharma. So now let's talk about pathways and function. There are certain dopaminergic neurons or pathways that result in formation of dopamine. और हर एक का फंक्शन भी उसी के हिसाब से होता है. तो okay, so हमारे पास सबसे पहले है nigrostriatal pathway. Nigrostriatal pathway starts from substantia nigra. Substantia nigra is a place in brain that makes dopamine. So substantia nigra से dopamine travels to midbrain. So this pathway, इसका function क्या होता है? इसका function दो होते हैं. इसका एक तो movement होती है और दूसरा sensory stimuli को ये receive करता है. तो अगर ये pathway malfunction कर जाए और इसमें अगर dopamine ज़्यादा release हो, तो हमें कुछ disorders देखने को मिलते हैं जिनमें हमारे पास आ जाता है कोरिया, which is characterized by dancing like movements. तो हमारे पास जो patient आएगा, he will present with chorea. Acidosis, snake like movement. Acidosis is also seen in pediatric cerebral palsy, जिसमें when a child is born तो उसके अगर brain तक in oxygen नहीं जाती तो उसको acidosis के साथ वो present करता है, which is snake like movement. And tics, which is repetition of movement. इसकी एग्जांपल ये होती है कि जो पेशेंट होता है उसको ट्विचिंग ऑफ मसल्स हो रही होती है या ट्विचिंग ऑफ आई होती है. अगर यहाँ पे डोपामिन कम प्रोड्यूस हो तो उस बंदे को पार्किंसन हो जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेसोकॉर्टिकल पाथवे. So mesocorticolimbic pathway is one pathway. We have divided it into two pathways, mesocortical and mesolimbic.
Again, meso means midbrain. So it starts from midbrain, includes prefrontal cortex, and ends up in limbic system in nucleus accumbens. So the pathway that starts from midbrain and ends in cortex is called mesocortical pathway, and this pathway has been associated with pleasure, reward-seeking behaviors, addiction, emotion, perception. So prefrontal cortex. The limbic pathway starts from prefrontal cortex and ends up in limbic system. This pathway is involved with cognitive functions like cognition, memory, attention, learning. Now, अगर ये pathway malfunction करता है और यहाँ पे ज़्यादा dopamine release होती है, तो the person goes in euphoria. This further elevates into hallucination. फिर इससे आगे psychosis and then ends up in schizophrenia. और इसको this is a pathway people activate by drugs, जैसे कि cocaine और meth. So this is a pathway that's involved where in drugs, ये आप drugs लेते हो, dopamine ज़्यादा release होती है, you go in euphoria, which is like a state of high. और बंदे को कुछ feel नहीं होता और सब लगता है कि सब अच्छा है. और फिर अगर इस pathway में dopamine कम release हो, तो क्या होता है? Depression होता है. और depression को हम कैसे deal करते हैं? एंटी साइकोटिक्स देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं. वो बेसिकली क्या करती हैं? यहाँ पे जाके डोपामिन को ज़्यादा कर देती हैं. नेक्स्ट वी हैव ट्यूबेरो-इंफंडिबुलर पाथवे. नाउ हियर जो डोपामिन होता है ना, इट एक्ट्स एज पार्ट ऑफ एंडोक्राइन यानी हार्मोनल सिस्टम का पाथवे देता है और यहाँ पे एक्ट करता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर. नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन निकलता है जिससे मिल्क सिक्रेशन ज़्यादा होती है, बट डोपामिन हेयर एक्ट्स एज प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर. यानी अगर यहाँ पे डोपामिन ज़्यादा रिलीज हुआ, बिकॉज इट इज़ अ इनहिबिटरी फैक्टर, इट विल इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, सो इट विल सप्रेस मिल्क प्रोडक्शन. अगर यहाँ पे डोपामिन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, कम प्रोड्यूस हुआ, तो इट विल कम प्रोड्यूस हुआ तो इनहिबिटरी फैक्टर है, इनहिबिट नहीं करेगा तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा, which can either result in galactoria, increased milk production, but it can also suppress our gonadotropin releasing hormones. Now gonadotropin releasing hormones are the hormones जो कि हमारा reproductive system produce करता है. जिसका मतलब क्या हुआ? It can either result in amenorrhea, which is like suppressing our menstrual cycle and stopping it, and it can also result in infertility and gynecomastia in males. So this is a pathway that's involved in prolactin secretion. Now now we will be talking about disorders. So let's talk about schizophrenia first. Schizophrenia is a disorder that has been associated with depression of dopamine. अब हमारे पास क्या होता है कि ये एक mental disorder है where a person is unable to recognize or interpret reality और abnormal social behavior show करता है. इसमें हमारे पास जो symptoms आते हैं वो हमारे पास आता है delusions होती हैं, hallucinations होती हैं. anyone here जो कि मुझे डिफरेंस बता सके delusions में और hallucinations में? Anyone that can tell me difference between delusion or hallucination? Yep. I think yes, my name is Savi Salahuddin. Okay. And the answer to your question is that in hallucination, the thing actually doesn't exist. What we have, we visualize something in our mind, and और वो चीज़ ऐसे जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन ब्रेन के हवाले से जो डिसऑर्डर होता है उसमें जो है वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, जो भी हमारे जो एक थॉट डेवलप हो जाता है, एंड इट्स द अदर वे अराउंड इन hallucination. तो उसमें दोनों में ये डिफरेंस आ जाता है. Okay, thank you. Anyone else who wants to contribute?
I think, Zainab, you can see public chat as well. Miss Saira Ibrar and Miss Samreen. Okay. Yeah, ma'am, Miss Saira Ibrar has currently pointed out delusion is a false belief that we build in our mind. और जो भी होता है delusion वो हमारे mind में होता है. For example, हमारा जो पेशेंट आता है उसको इस तरह लगता है कि जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं ना वो उसके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो उसको मार देंगे, ये जो उसको उसकी अम्मी है वो उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही. तो अब हमारे पास जो पेशेंट आता है उसको जब डिल्यूजन होता है तो जो भी वो सोचता है वो अपने दिमाग में सोचता है, लेकिन हेलुसिनेशन में ये फर्क होता है कि उसको मरे हुए लोगों की आवाज़ आती है, उसको या आवाज़ें आती हैं या फिर उसको लोग दिखाई देते हैं. तो वो ऑडिटरी भी होता है, विजुअल भी होता है, लेकिन जो डिल्यूजन में जो भी कुछ हो रहा होता है वो सिर्फ उसका फॉल्स बिलीव होता है जो उसके सिर्फ दिमाग के अंदर हो रहा होता है. इसके अलावा डिल्यूजन में क्या स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, हमारे पास डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होती है. जैसे कि इनअप्रोप्रिएट ड्रेस पहनना, जैसे कि अब गर्मियाँ चल रही हैं तो कोई जैकेट वगैरह पहन के आ जाए. और इसके अलावा इनअप्रोप्रिएट इमोशनल बिहेवियर, जैसे एकदम से कोई रोना शुरू कर दे, या फिर जब रोना हो तो वो हंसना शुरू कर दे, या फिर वो बात कर रहा हो और बात करते करते एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से तीसरा टॉपिक, और कोई लॉजिक ही नहीं बन रही उसके बाद की. और अगर आप उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें तो वो उसको बहुत इलॉजिकली अपनी तरीके से कुछ भी उसमें डाल के आंसर करे. अब इस सब में हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स भी आते हैं. हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स कौन से आते हैं, ये हमारे पास होते हैं कि बंदा अपनी मोटिवेशन को लूज कर देता है और उसको मोटिवेशन ही नहीं होती कि वो अगले दिन वापस ऑफिस जाए, या फिर अगर वो ऑफिस जाता है तो वो उन्हीं कपड़ों में वापस चला जाता है, और या फिर वो सोशली अपने आप को विदड्रॉ कर लेता है, या फिर अगर आप उससे बात करें तो वो आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाता और अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज ही नहीं करता. तो इस बंदे को इस बंदे में क्या हुआ है कि जो प्लेजर वाला पाथवे है ना वो खराब हो गया, जिसकी वजह से he or she has lack of ability of experiencing pleasure. Now इसके कॉजेज जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. एक तो ये इडियोपैथिक होता है कि इसकी कोई कॉज अभी तक नोन ही नहीं हुई, लेकिन कुछ जेनेटिक्स भी होते हैं, कुछ ब्रेन केमिस्ट्री पे भी डिपेंड करते हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया अपनी प्रेजेंटेशन में, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ D2 रिसेप्टर्स ऑल्सो कॉजेज स्किज़ोफ्रेनिया. सो इसके अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च हमें पहले लगता था कि सिर्फ डोपामीन इन्वॉल्व है, लेकिन अब हमें लगता है कि और पाथवेज या न्यूरोट्रांसमीटर भी इन्वॉल्व है. आई थिंक इमरान हैज रेज्ड अ क्वेश्चन, हिज हैंड. कैन यू राइट योर क्वेश्चन और लाइक Imran sir, can you hear us? Because we cannot hear you. Please refresh your screen, then do the connectivity test again. Yes, please continue. Okay. So हमारे पास अभी तक जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि स्किज़ोफ्रेनिया में इसलिए हो रहा है क्योंकि D2 रिसेप्टर्स की ओवर स्टिमुलेशन हो रही है. और Zainab, Imran is back. Yes, Imran. अच्छा, मैं इस तरह के जो पेशेंट हैं इसके अंदर जो हमारा कम्युनिटी का या फैमिली का जो सपोर्ट सिस्टम है वो कितना रोल प्ले करता है इनको बेहतर करने में या नॉर्मलाइज करने में इनकी कंडीशंस को? एज करेक्टली पॉइंटेड आउट बाय सर इमरान, मैं जब अपनी साइकियाट्रिस्ट से यहाँ पे जाकर मैं बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पेशेंट आई है, और जो पेशेंट है वो एक छोटी बच्ची है जो कि 4th क्लास में पढ़ती है, और वो जाती है स्कूल, लेकिन उसका स्कूल चेंज कराया है फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से उसके अम्मी अबू ने. और अब वो उस बच्ची ने आके अपने अम्मी अबू को बोला है कि मुझे जिन नज़र आते हैं, और अब मुझे जिन नज़र आते हैं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी. तो अब क्या हुआ कि जब वो उसको जाहिर बात है पहले डाउ लेके गए, डाउ से उनको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो उन्होंने रिलीजियस बहुत सारे स्कॉलर्स को दिखाया. जब वो मल्टीपल स्कॉलर्स को उन्होंने दिखाया तो एक स्कॉलर ने उनको बोला कि ये मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, और अब मुझे लगता है कि आपको इसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए. अब जब वो बच्ची के अम्मी आई तो शी वॉज उनका जो बिलीव था कि उनको पक्का पता था कि कोई जिन है जो कि उनके घर पे है. उनके उससे 3 बड़े बच्चे थे, लेकिन वो उनके साथ कुछ नहीं करता. जो छोटी बच्ची है ना उसके ऊपर वो जिन हावी है, और वो उसकी नोटबुक्स भी फाड़ देता है, उसके यूनिफॉर्म को भी फाड़ देता है.
और वो चाहता है कि वो उस स्कूल में ना जाए. अब हाउ डू यू थिंक वी शुड अप्रोच दैट पेशेंट? देखिए मेरा पॉइंट फिर भी वही है कि ठीक है, अभी सोशो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं. पाकिस्तान में 34% रेशियो बनती है, अभी भी जो बहुत कम है फर्स्ट वर्ल्ड के. अगर हम उसके कंपैरिजन में जाएं तो वो भी बहुत कम है. देखिए यहाँ पे भी गैप है एक कम्युनिकेशन का बिटवीन पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में. अगर वो बच्चों को अपने कॉन्फिडेंस में ले, उनके साथ कम्युनिकेट करें कि वो अभी एक रफ पैच में से गुजर रहे हैं और उनको किस तरह से करना है, तो मेरा ख्याल है कि बच्चे शायद उस सिचुएशन में जाते ही ना. सो ये जो एक गैप आ जाता है कम्युनिकेशन का भी, और वो सपोर्ट सिस्टम जब खत्म हो जाता है तो फिर वो गैप किसी चीज़ ने तो फिल करना होता है, तो डेफिनेटली फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसमें आ जाती हैं. अभी डिप्रेशन है या डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उसके डेफिनेटली बहुत से रीजंस हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको चीज़ को शायद एक स्टिग्मा समझ के शायद इस पर बात ही नहीं करते, और बहुत से लोग हैं जो इसको एक कोई डिसऑर्डर कंसिडर ही नहीं करते. तो ये भी एक चीज़ है. तो फिर बेसिकली वही चीज़ है कि अगर हमारा फैमिली का जो एक सपोर्ट सिस्टम है, फ्रेंड्स का, कम्युनिटी का, वो इसमें एक बड़ा वाइटल और मेजर रोल प्ले कर सकता है. आप देखिए ना, अभी फर्स्ट वर्ल्ड में हम देखते हैं, हम हर चीज़ की मिसाल देते हैं फर्स्ट वर्ल्ड की, और अमेरिका चले जाते हैं तो उसमें से एवरी 1 in 6 एडल्ट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसी डिप्रेशन को और डिसऑर्डर्स को. तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जी इसके अंदर एक गैप आ सकता है फ्रेंड्स और फैमिली की सपोर्ट सिस्टम का या बाकी का. बट हमारे यहाँ पे तो भी काफ़ी एक सपोर्ट सिस्टम है फैमिली का या कम्युनिटी का. तो इस बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. वहाँ पे वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को एज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर मानते हैं कि ये एक डिसऑर्डर है, और वहाँ पे सपोर्ट तो आता है फैमिली का भी और ऑब्वियसली फ्रेंड्स का भी. लेकिन वहाँ पे हर स्कूल में एक काउंसलर होता है, जहाँ पे अगर आपको अपनी अम्मी अब्बू की सेम कोई मसला आ रहा है या इसके अलावा कोई मसला आ रहा है, तो आपका एसेस टू मेंटल टू पीपल हु नो अबाउट मेंटल हेल्थ वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी इट इज लाइक अ ऑनगोइंग फाइट के हम इसकी आई थिंक मेनली यही है कि हम लोग अवेयरनेस फैलाएं. ओके, सो कमल अहमद हैज आल्सो रेज्ड हैंड, सो इफ शी वांट्स टू कंट्रीब्यूट. Kamal Ahmed. Miss Saira Ibrahim, please, you can unmute your mic. Yes, Rahman. मिस एक छोटा सा क्वेश्चन है. एक अगर ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ना हो रही हो, फास्ट ना हो रही हो, स्लो चल रही हो, एक दूसरा अगर ब्रेन के न्यूरॉन बूस्ट ना कर रही हो, तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? पहली बात तो अगर ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में खराब होती है तो हमारे पास स्ट्रोक होता है. स्ट्रोक के बिल्कुल अलग सिम्टम्स आते हैं. उसमें हमारे पास हमारी मूवमेंट नहीं हो सकती, हेमीप्लेजिया हो जाती है यानी पैरालिसिस हो जाती है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो जाती है. वो बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है. दूसरी चीज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स की हम अभी बात कर रहे हैं कि ये जो कंडीशंस आ रही हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के मेल फंक्शन करने की वजह से ही आ रही हैं. तो हमारे पास नॉलेज होना कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के मेल फंक्शन करने की वजह से भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं, और उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए एज डिसऑर्डर्स इज लाइक एन ऑनगोइंग डिबेट. और मींस अगर एक पेशेंट है, उसके साथ ये सीन हुआ है कि उसको बीपी शूट हुआ था कुछ 4 साल पहले, उसको ना ब्रेन में कुछ क्लाउड थे, ब्लड क्लाउड, कुछ क्लाउड जो है वो निकल गए थे मेडिसिन से ही, मतलब सर्कुलेशन में आ गए थे. ठीक है. और जो दूसरा था वो जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने इसको ना वो दे दिए थे ड्रग्स मेडिसिन ना, वो रिलैक्सेशन के लिए, फिर बीपी की व्हाटएवर जो भी. उससे क्या होगा, जो पास्ट जो था ना उसका सारा वो भूल चुका था. एक दूसरा, अगर वो कुछ चीज अगर वो ड्रग ना ले या मेडिसिन ना खाए तो वो उसको इरिटेशन, एलर्जी और गुस्सा बहुत ज्यादा आता है. जी जी, ठीक है. ठीक है. और दूसरा, सोच नेगेटिव जाती है. ये ब्लड सर्कुलेशन की वजह से है, ये ब्रेन न्यूरॉन्स की वजह से नहीं हो रहा है, ये क्या इशू, ये जरा थोड़ा सा बताएंगे थोड़ा सा. अच्छा, तो उनको बेसिकली क्लॉट्स बन गए थे. अब जो क्लॉट्स थे उन्होंने जाके ब्लड की सप्लाई को रोकना शुरू कर दिया था.
जब उन्होंने रोकना शुरू किया जिसकी तो ब्लड की सप्लाई उनके ब्रेन को खराब होना शुरू हो गई। अब जो हमने उनको मेडिकेशंस दी होंगी वो उनको हमने ब्लड थिनर्स दी होंगी, वो इसलिए दी होंगी ताकि जो क्लॉट्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएं और जो ब्लड की सप्लाई है वो पूरे ब्रेन को आराम से मिल जाए। अब जो ब्रेन होता है उसको कभी भी ब्लड की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टर 10 सेकेंड्स हमारे पास फेंटिंग हो जाती है और हमारे पास जो ब्लड होता है इट नीड्स लाइक 20% ऑफ ऑक्सीजन और बाकी बॉडी को 80% जाती है। हालांकि ब्रेन बहुत छोटा हमारे पास एक ऑर्गन है और ऐसा मेटाबॉलिक रोल प्ले कर रहा है। जो मेमोरी लॉस हो रही है वो ब्लड सर्कुलेशन की नहीं हो रही, इस वजह से लॉस हो रही है। हाँ राइट, तो ऐसे ही नहीं, तो बेसिकली अब हमारे पास ब्रेन में सर्टेन एरियाज होते हैं, जैसे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का अलग काम होता है, लिम्बिक सिस्टम का अलग काम होता है। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना वो उसके अंदर मेमोरी स्टोर भी होती है, इस तरह लिम्बिक सिस्टम के अंदर भी स्टोर होती है। अब लिम्बिक सिस्टम का रोल इमोशंस में भी आ जाता है। तो जब हमारे पास ब्लड ब्रेन के पास नहीं जा रहा तो वो मतलब लिम्बिक सिस्टम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम यहाँ पे ही इफेक्ट हो रहा है। तो जब यहाँ पे इफेक्ट होता है तो बंदे को मूड स्विंग्स होते हैं, मेमोरी लॉस होती है। तो हाँ आप सही कह रहे हैं, इस तरह भी होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। यस। सो मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है कि अभी पाकिस्तान में जैसे हमने भी बात की है कि 34% लोग जो हैं वो इसको फेस कर रहे हैं और इसके अंदर हैं, बट इसमें एक और भी चीज जो साथ में चल रही है कि एक तो इसको कोई डिसऑर्डर समझा नहीं जाता, सीरियस नहीं लिया जाता। अभी कुछ बड़े स्कूल जो है उसके अंदर साइकेट्रिस्ट हैं, बच्चों की असेसमेंट होती है, बाकी चीजें होती है और उनको असेस किया जाता है, मूड, बिहेवियर और बाकी सारी चीजों को। बट ओवरऑल हम सोसाइटी में देखते हैं कि लोग सैड हैं, होपलेस बैठे हुए हैं, तो अपना इंटरेस्ट लूज कर चुके हैं और काफी चीजों में वो लैग कर रहे हैं और उनके प्लेयर्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो ये भी हमारी एक और एक जो मेरा बेसिक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है एंड में करने लगा हूँ कि इसमें हम हमारे पास एक और भी चीज है कि हमारी असेस नहीं है जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन तक। तो इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे जनरल पब्लिक को हम बता सकते हैं कि आप इसमें कैसे करें। देखिए इसमें मैं भी सीखना चाहता हूँ, तो हम खुद भी फील करते हैं समटाइम्स कि यार जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी है, हम किस डिसऑर्डर्स में तो नहीं है या हमारे साथ क्या चल रहा है। सो डेफिनेटली हमारी असेस नहीं है उस तरह से जिस तरह से बाकी मुल्कों में है, या उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। ये मेरा पॉइंट थिंकिंग का ये वैलिड होगा कि बहुत सारे लोग इसमें भी पार्टिसिपेंट उस तरह से नहीं है टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ। ये प्लीज ये गाइड कीजिएगा। सर इमरान ने बिल्कुल सही बात की है एंड आई 100% एग्री विद हिम। पहली बात तो कि हमारे पास मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को हम वैलिडेट ही नहीं करते कि कोई डिसऑर्डर है, और उसके साथ हर बार कोई स्टिग्मा लगा होता है कि इसको नजर लग गई है, इसके ऊपर जिन चढ़ गए हैं, या फिर कोई भी इस तरह की कहानी आ जाती है कि जो ब्रेन है ना उसने हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना है। आई थिंक हम मेनली इस तरह इसको अप्रोच कर सकते हैं कि हम अवेयरनेस भी बढ़ाएं और एक्सेप्टेंस भी बढ़ाएं। अगर कोई बंदा आपको आके कहता है कि वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है या फिर वो अच्छा फील नहीं कर रहा, तो हम जरूरी है कि उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें। ये ना उसको बोल दें कि नहीं यार तुम जाके ये कर लो, तुम्हें नजर लग गई है या तुम पे जिन चढ़ गए हैं या फिर कोई मसला हो गया, ये लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। तो नहीं, तो आप उसको वैलिडेट करें उसकी फीलिंग्स को कि अगर उसको बुरा लग रहा है तो उसको बुरा लग रहा है। उसको अगर अगले दिन ऑफिस जाने का दिल नहीं चाह रहा तो उसको ऑफिस जाने का दिल नहीं चाह रहा, बिकॉज दीज आर लाइक वैलिड सिम्टम्स, दीज आर लाइक दीज। इसी से हम अपनी हिस्ट्री लेते हैं अपने पेशेंट्स की, और ये सिम्टम्स लाइक दे आर रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। तो एक तो अवेयरनेस हमें फैलाने की जरूरत है और एक्सेप्टेंस फैलाने की जरूरत है। नाउ दूसरा मसला, एक तो पेशेंट्स के अंदर अवेयरनेस नहीं है, और दूसरा मसला अगर पेशेंट्स के अंदर अवेयरनेस है तो मुझे जो नजर आता है बीइंग पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम कि एक तो साइकियाट्रिस्ट नहीं है, और साइकियाट्रिस्ट हैं तो उनकी फी इतनी ज्यादा है कि अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है। अब मैं कराची में रह के मेरे काफी सारे इस तरह के क्लास फेलोज हैं जो कि जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, लेकिन अब वही बात है, सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस की बात है कि दे बिलोंग टू अ क्लास जो कि असेस कर सकते हैं इस तरह के साइकोलॉजिस्ट को। और मैं काफी सारी साइकोलॉजिस्ट को जानती हूँ जिनका अगर आपने पास जाना होता है तो आपको बहुत दिनों पहले बुकिंग करानी पड़ती है, और 1 घंटे की स्लॉट के लिए यू हैव टू पे समथिंग अराउंड लाइक 6,000, और आगा खान में आई थिंक अराउंड 5,000 देना पड़ता है। सो दैट इज लाइक ह्यूज। तो दूसरा ये मसला तो आई थिंक हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का ही है कि
आप अगर साइकेट्रिस्ट हैं तो साइकेट्रिस्ट एक्सेसिबल ही नहीं है। हालांकि अगर हम बाहर देखें तो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो हर स्कूल में उसका अपना असाइंड काउंसलर होता है। तो ये बिल्कुल आपने सही वैलिड बात की है। इस पे काम आई थिंक हम रियासत में इस तरह होता है कि टेली क्लिनिक्स होते हैं। टेली क्लिनिक्स में क्या होता है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो ऑनलाइन बैठते हैं और उस टाइम स्लॉट में जो भी साइकेट्रिक पेशेंट्स आते हैं वो उनको देखते हैं, ताकि अगर थर से या फिर फॉर एग्जांपल पंजाब से किसी ने भी असेस करना वो उनको आराम से कॉल कर सकें और इनके साथ बात कर सकें। दूसरा इस तरह किया हुआ है कि लियाकत ने क्लिनिक्स बनाए हुए हैं इन रूरल एरियाज ऑफ कराची, जहाँ पे साइकेट्रिस्ट जाते हैं और वो एक दिन बैठते हैं और वहाँ पे जो भी पॉपुलेशन आती है वहाँ पे जाके वो उनसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और अभी जो रिसेंट फ्लड्स हुए थे तो जो हमारी कैंपेन थी वो हमने की और जो डॉक्टर्स गए थे तो हमने एक चीज़ नोटिस की थी। हम सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लेके गए थे, सारे जीआईटी के मसले, कार्डियो के मसले, सब मसले लेके गए थे, लेकिन जो पेशेंट्स आते थे उनको पीटीएसडी होता था पानी की आवाज़ सुन के। उनको पानी की आवाज़ सुन के डर लगता था। तो हमें एकदम से फीलिंग हुई कि हम साइकेट्रिस्ट को तो लेके ही नहीं आए, और तब हमें रियलाइज हुआ कि यार हम खुद भी इसको इतना वैलिडेट नहीं करते। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक तो हमारे हेल्थ केयर में मसला है और ऊपर से हमने अवेयरनेस नहीं फैलाई हुई। अवेयरनेस है तो एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस है तो रीच करने में बहुत मसला आता है। तो आई थिंक इसको इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं कि आप डॉक्टर्स को बैठना चाहिए और स्टाफ, जहाँ पे मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। How are you, Zainab? I'm fine. I can't get over how great your presentation is, your confidence. So I would love to hear more. Please continue your presentation. Okay, thank you so much. Yes, Mr. Imran. जी ज़ैनब, मेरा क्वेश्चन ये कि एज अ सोसाइटी हम अपनी कम्युनिटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चले हमारी सेंस नहीं है, बट ये है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो कम्युनिटी में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स अ बेटर जो है हेल्थ कंडीशंस और लोगों को साथ में लेके चलने के लिए। उसमें अगर कोई आप टिप्स दें तो मे बी हम अपने सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनके साथ बेहतर अपना सोशल एक जो कनेक्शन है उसको बेहतर कर सके और शायद हम गैप्स को ख़त्म कर सके, जिसकी वजह से दूसरे जो है वो अगर सफ़र कोई कर रहा है तो हम शायद उसको रेस्क्यू कर सकें। इसमें कोई टिप्स शेयर करें हमारे साथ। तो अब मैं जब साइकेट्रिक क्लिनिक में गई तो मैंने यही देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पेशेंट्स आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके साथ जो लोग होते हैं वो उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते और वो उनकी फीलिंग्स को नलीफाई कर रहे होते हैं या फिर उनकी बात को सुन नहीं रहे होते। तो एज आई सेड, अवेयरनेस होती है तभी वो साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं होती। अगर जैसे मैंने अब आपको सिम्टम्स बताए, कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं कि बंदा अपने कपड़े चेंज ही नहीं करता, वो नहाता ही नहीं है, उसको अपने हाइजीन का ख्याल ही नहीं होता। तो इस तरह का जब कुछ हो जाए या फिर उस बंदे को लगे कि मुझे मेरी अम्मी मर गई थी और मुझे उनकी आवाज़ आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा आया बलूचिस्तान से। अब जो वो ओपीडी में आया तो उसने आके बताया कि मुझे ना शेर की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे शेर दिखाई देता है, ये शेर मुझे खा जाएगा। अब उसके अबू पहले उसको डाउ लेके गए, डाउ से वो भाग गया और वो भागता गया और वो उनको आई थिंक कोई आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची में मिला। तो उन्होंने उसको पकड़ा और फिर उसको लियाकत लेके आए। अब कोई बच्चा आपको कितनी बार बोलेगा कि उसको शेर की आवाज़ आती है। पहले उन्होंने उसकी बात पे तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब उसको लेके आए उन्होंने उसकी बात को एक्नॉलेज किया कि शायद कोई मसला है। अब ये शायद कोई मसला है और एक्नॉलेज करना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीइंग इन मेडिकल कॉलेज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इस तरह के लोगों को पता है जिनको एंजाइटी होती है, जिनको ADHD है। अब वो लोग ओपनली अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को नहीं बताते। एज अ सोसाइटी आई थिंक एक्सेप्ट करना कि किसी के साथ अगर कोई मसला हो रहा है तो वो यकीनन हो रहा होगा और उसके अंदर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम होगी, और ब्रेन का अगर कोई मसला है तो वो ट्रीटेबल होता है। और हमने जितनी मैंने अपनी देखा है वहाँ पे दवाइयाँ लेके इट गेट्स बेटर। ये नहीं होता कि दवाइयों में अब ना एक तो अवेयरनेस होती है कि आप अवेयर करें एक दूसरे को, आप दूसरों की बात को सुन लें बस।
आई थिंक उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मेरे पास इतने मैंने देखे हैं पेशेंट्स साइकेट्रिक क्लिनिक पे, उसकी बात को सुनती तो है उनकी बेटी, लेकिन वो उनकी बात को एक्नॉलेज नहीं करती। तो वो जब एक्नॉलेज नहीं करती तो आहिस्ता आहिस्ता वो बोल बोल के खुद ही थक जाती हैं और वो होपलेस हो जाती हैं। और जब वो होपलेस हो जाती हैं तो फिर शी गिव्स अप। व्हेन यू गिव अप, दैट मीन्स के भाई अब तो आपने यू हैव गिवन अप और अब आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अब डिप्रेशन की भी कैटेगरीज होती हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आप अवेयरनेस फैलाएं। और जब आपके पास आपसे कोई आके बात करना चाहता है ना, जस्ट हियर देम आउट। आई थिंक हियरिंग देम आउट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। और एक्सेप्ट करें उसकी फीलिंग को कि अगर आप कुछ इस तरह हो रहा है ना, तो फिर हाँ इस तरह कुछ हो रहा होगा। और अगर वो रिकरेंट हो रहा है या बार बार हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाने में कोई मसला नहीं है, और आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें और इसकी दवाइयाँ लें। और दवाइयाँ वालेकुम अस्सलाम। Zainab, how are you? आई एम फाइन। I am psychologist. तो मैं ये बताना चाहती थी कि मतलब साइकोलॉजिस्ट में और साइकेट्रिस्ट में डिफरेंस होता है काफ़ी। तो साइकेट्रिस्ट मतलब मेडिसिन वगैरह वो रेफर करते हैं, वो देते हैं। तो लेकिन साइकोलॉजिस्ट ये है वो टॉक थेरेपी से करते हैं सब कुछ। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उन्हें देखा मतलब सेशन वो लें, 2-3 सेशन लें, अगर देखें इम्प्रूवमेंट नहीं आती उसके बाद हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो मतलब साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो टॉक थेरेपी से सब कुछ मतलब करते हैं, ट्रीट करते हैं पेशेंट। तो मतलब अब नॉर्मल बंदे देखिए हम कहते हैं ना हम बिल्कुल ठीक है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब तो ऐसा है कि नॉर्मल बंदे को भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये स्ट्रेस वगैरह लेते हैं, एंजाइटी, हर किस्म की एंजाइटी होती है आजकल। देखें स्कूल में, देखें छोटे छोटे बच्चों को कैसी एंजाइटीज होती हैं। और इस चीज़ के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास पहले जाना चाहिए हमें, क्योंकि वो देखें टॉक थेरेपी से कवर करते हैं सब कुछ। अब हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो हमें ज़रूर मेडिसिन वगैरह तो वो देते हैं साथ। यार मैंने जो देखा है ना कि हमारे पास टॉक थेरेपीज भी होती हैं और फिर मेडिकेशंस भी होती हैं। आई थिंक सर इंतखाब वांट्स टू कंट्रीब्यूट। सर इंतखाब इज रेजिंग हिज हैंड। Thank you very much, beta. I just heard you just really contributing a lot to the topic. Thank you. Actually, I wanted to just add up here, because we teachers are mostly here, or even the people who are working around. Okay, psychiatrists definitely, and then psychotherapists, they are just very far away. But if we start listening to all around us, whenever we have a time, we just sit them and we just offer them a cup of tea, all the workers, all the persons around, and even the students. Sometimes when we see that they are depressed, if we just sit with them and talk with them, most of the problem is resolved. But definitely if it is occurring again and again, then definitely we can refer and we can just proceed further. Yes, we can contribute in this way, that we talk to the people. Thank you, beta. Thank you very much. You are giving a valuable just talk to all of us. Thank you. Thank you. बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत वैलिड पॉइंट है आपका सर। Zainab, you can see the public chat, please. Someone is saying, sorry, Amber Furqan is saying, Zainab, मैं 15 years से डिप्रेशन में हूँ. I could take decision, but मैं डरती हूँ, खौफ है. I wanted to spend my life alone with my kids without him. Can take the decision as now my kids are growing, and then also don't want to live with father. I don't have a black no. So Ms. Amber, can you contact me after this? We can discuss about this, obviously, but I think this is a personal problem that needs a consultation with a psychiatrist or a psychologist. आपको डर है because you don't have a bag, right? So obviously इसके इस पर बात हो सकती है और इसको हम सही किया जा सकता है. Okay, Zainab, it's 7:45 now. We have 5 to 6 minutes now. Okay. You can check public chat in a while. I need just 30 seconds to demonstrate how to give review to this session. Okay, so I'm taking presentation. So एक और disease I wanted to also share about is abuse of drugs. तो जब when you feel like you have given up on life, तो
what do people start doing is they start abusing drugs. Or drug abuse is a massive condition which has not only been found in like schools में हमें बहुत common मिलती है, colleges में भी मिलती है, university में बहुत common हो गई है again. And then अब तो drug addicts, I think कभी आप सड़क पे जा रहे हो तो साइड पे drug addicts लेटे हुए होते हैं, जिसकी वजह से HIV और AIDS वगैरह ज़्यादा हो गई हैं. लेकिन like coming back to the topic, abuse of drugs we have seen a massive increase in abuse of drugs. So I wish mental health was way more accessible कि लोग abuse of drugs की तरफ ना जाते. लेकिन हाँ, it is one of the symptoms that has been associated with dopamine. And किसी ने I think public chat में लिखा था what is ADHD. So ADHD is a developmental disorder. It is attention deficit hyperactive disorder. इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, वो सोशली अपने आप को विथड्रॉ करके लगता है. उसको उसको कोई भी चेंज होता है ना तो उसको बहुत डीपली अफेक्ट करता है. उसको कम्युनिकेशन में मसला आता है, उसको मोटर इफेक्ट्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ना वो सही से चल सकता है और अपने कंसर्न्स को भी वो सही से वर्बलाइज करके बता नहीं सकता. तो ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी आते हैं. Now, does anyone has any question? I think Mr. Sabi wanted to say something. Mr. Sabi? जी प्लीज. थैंक यू वेरी मच मिस्टर बिलाल. देखिए, मेरा क्वेश्चन एक है और वो ये है कि डोपामीन जो है, ठीक है, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग कि ये न्यू ट्रांसमिटर्स वगैरह और हार्मोन्स के हवाले से, और इस कदर तो कुछ इल्म भी है कि इट्स बिकॉज ऑफ दिस स्लीप डिप्रीविएशन होती है, कुछ इसमें ओबेसिटी का भी होता है, जो ओवरवेट हो जाते हैं, या स्ट्रेसफुल इवेंट्स, या कोई फूड की ऐसी इनटेक. नाउ माय क्वेश्चन इज के इज इट देयर टू क्वेश्चंस, इज इट रिलेटेड टू एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी इन द एरियाज ऑफ ब्रेन, number one, and if so, what vitamins are good for this dopamine? So could you answer these please? Okay, तो नंबर वन है कि कोई इंजरी होती है ब्रेन में जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, तो इसकी काफी ज्यादा कॉजेज होती हैं, लेकिन मेनली इडियोपैथिक होता है. इडियोपैथिक मतलब causes not known by science yet. तो हाँ, इडियोपैथिक ऑनसेट होता है कि कभी कभी खुद से होना शुरू हो जाता है, कोई इमोशनल ट्रॉमा होता है उसके बाद भी हो सकता है, कोई ब्रेन की इस जगह को ट्रॉमा हो, जैसे कि मैंने बताया लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को. अगर ऑब्वियसली लिम्बिक सिस्टम पे ट्रॉमा हुआ तो हाँ, इमोशनल डिसऑर्डर्स भी आएंगे. तो हाँ, उस वजह से भी होता है. तो इसके काफी ज्यादा कॉजेज होते हैं और जेनेटिक्स भी इसमें रोल प्ले करती है. दूसरा क्वेश्चन क्या था? विटामिन्स, कौन से विटामिन्स अच्छा रिकमेंड करेंगे आप? तो डोपामीन जैसे मैंने बताया था, बनाने में विटामिन B6 चाहिए होता है. तो विटामिन B6 के जो सोर्सेज होते हैं, अच्छा मेनली मुझे लगता है कि बंदे को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जनरल, फ्रूट्स और मीट, इनका एक प्रोपोर्शन तो पक्का अपनी हर डाइट में खाना चाहिए. अब मसला ये आ गया कि हमने शिफ्ट कर लिया है फ्रॉम वेजिटेबल्स टू फ्राइड फूड्स, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी बॉडी को जो विटामिन मिलते थे वो नहीं मिलते हैं. और अगर हम डाइट खाते भी हैं इस तरह की, तो उसमें बहुत ज़्यादा आई थिंक अब प्योर डाइट नहीं आती, तो ऑब्वियसली सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत पड़ती है. तो विटामिन B6 और विटामिन B एंड विटामिन C इन जनरल आर रियली गुड. Okay, thank you very much. Thank you, so nice. So okay, Zainab, we have 3 minutes left. Okay. And if anyone has to say something, please come up. All right, Zainab. So my question is OCD also related with it? Like the obsessive, I think the full form of OCD is obsessive compulsive disorder, something like that. Is OCD also related with it? Yeah, obsessive compulsive disorder. As I said, it does affect emotions, but OCD में person is like he or she has obsessive thoughts and compulsive behaviors. So yes, it is associated with it, but behaviors में हमारे पास इसमें emotional behavior नहीं आएगा.
कंपल्सिव बिहेवियर्स आएंगे तो इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स या ब्रेन के दूसरे पार्ट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो ये वाला पार्ट कम इन्वॉल्व होता है, इसमें ज़्यादा इमोशंस की बात आ जाती है। ये जो कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी दूसरे एरियाज ऑफ ब्रेन है, उसमें कोई और न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है, लेकिन हाँ न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से होता है, वो ओसीडी होता है। ओके, तो अंबर फुरकान काफ़ी देर से अनम्यूट कर रही हैं। Maybe she wants to say something, but she's not gathering that courage to say. Amber, do you want to say something? There's a silence. Okay. So, yes, Mr. Sameer, let's think wrap up, I think. सेशन एंड हो रहा है और मैं अभी भी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और मैं ये है भी मैम समरीन गजनफर से कि काइंडली ये थोड़ा सा इस चीज के ऊपर भी हमें कीजिए कि एज अ मुस्लिम हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्सेस कि डिप्रेशन में हम ना जाएं। इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना, ये समरीन साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा सा इसके ऊपर देखें। जहाँ पर एक साइंटिफिक रीजन है तो वहाँ पर एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए, दैट इज़ ट्रू। मगर ज़ैनब की प्रेजेंटेशन, हर कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था दैट आई कुडंट से दिस, कि अपने आप को इस चीज़ से बचाने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ तवक्कल अल्लाह। अगर हम अल्लाह पर ट्रस्ट, भरोसा, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह से पूछेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह पे यकीन रखेंगे तो ज़रूर हम बहुत सी मुश्किलों से निकल सकते हैं। जैसे आजकल हमारी जनरेशन में हो रहा है, हमारी जनरेशन क्या जो हमसे पीछे थी, हमारे वालिदैन, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब जो रहे हैं काफ़ी इश्यूज में रहे हैं। जैसे अभी भी कोई डिस्कस कर रहा था, तो मैं यही कहूँगी कि वाई देयर इज नो बैक। क्यों ये कहा जा रहा है कि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है? क्यों ये कहा जा रहा है कि आपके पास कोई हेल्प नहीं है? हेल्प है, अल्लाह की है। तो आप ये हमेशा यकीन रखें कि अगर कोई आपके पास ऐसा माहौल है जिसमें आप नहीं रहना चाहते, अगर वो अब्यूजिव है, अगर वो आपके लायक नहीं है, तो फिर मूव ऑन। I think Samreen has disconnected. I certainly agree with Samreen. Being Muslims, religious beliefs or religion plays a vital role. और मुझे लगता है अगर आपका अल्लाह मियां से कनेक्शन, I think वो पर्सनल लेवल पे आ जाता है। पर उसमें मैं अगर एक पॉइंट मैं कह रही थी कि ग्रेट प्रेजेंटेशन ज़ैनब, माशाल्लाह, वेरी ग्रेट जॉब, और कीप। Okay, so I think Zainab, do you have any last words? And we will just end this session now. Okay, Assalamu alaikum. Zainab, very nice. Can I say something? Yes, come on, please. We have very short time right now. Oh, okay. Zainab, very nice presentation. Inshallah, we will work on it. We will study further. You have shown here increase like disorders, increase dopamine and deficiency. So, what are the causes that the dopamine increase, or why it decreases in the body? So there are certain causes, as I said कि idiopathic सबसे ज़्यादा बड़ा cause है। idiopathic onset होता है यानी sudden onset होता है, इसकी कोई अभी तक known cause नहीं है। दूसरा होता है genetics, तीसरा होता है कि हमारे पास कोई ट्रॉमा हो गया हो, और चौथा क्या होता है कि इमोशंस के आप इस तरह के इन्वायरमेंट में हैं दैट फोर्स यू टू बिलीव सर्टेन थिंग्स, या फिर आप डिप्रेशन में खुद भी जा सकते हो। और पांचवा हमारे पास डाइटरी मॉडिफिकेशन वगैरह आ जाती हैं कि डाइट हम सही नहीं लेते, तो डाइट की वजह से भी हो सकता है। Okay, so this was a great session. I hope I gave you guys something to learn about it. And it was really, mashallah, very great presentation. The confidence, this is the confidence we all need. मैं यही कहूँगी, ऐसा confidence चाहिए माशाल्लाह। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बहुत अच्छा आपने कैरी किया, और बहुत अच्छे से आपने स्किल शेयर का ये सेशन एक सक्सेसफुल सेशन बना दिया, and we are very proud of you. Thank you everyone for participating with Zainab. Thank you so much Bilal sahab, thank you so much Zainab sahaba, Samreen Gazanfar sahab, thank you so much everyone. Yes, thank you very much. It had been very useful and informative. Thank you. Thank you. Okay, Allah Hafiz, take care.